as I said, today lecture is going to be very important for you people because you are going to learn concept related to differentiation and shortcut technique which we apply in differentiation. By this method, you can solve many of the sums related to derivative. Okay, directly within one step. First shortcut method is if you have derivative of a function plus b upon c function plus d. इसका direct answer ऐसा होता है हमेशा यहाँ पे a determinant of det of a b c d into f dash of x divide by c डिनोमिनेटर का स्क्वायर c f of x plus d the whole square. चलो एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं जस्ट फॉर आवर just to verify this. One question which I am considering is, let's say 22 minus 5 sin x upon 10 sin x plus 3. अच्छा, इसको नॉर्मली अगर डिफरेंशिएट करते थे हम कैसे अप्लाई करते थे इसका डेरिवेटिव, कोई बताएगा? आदित्य, अगर मैं नॉर्मली डिफरेंशिएट करता तो कैसे करता इसको? u by v which is called as quotient rule. ठीक है, क्वेश्चन रूल अप्लाई अभी हम सबको पता है भाई, u by v में थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब कैलकुलेशन एरर हो सकता है. अगर ऐसा कुछ मेथड है तो सबसे बेस्ट है ना. इफ आई कंपेयर, हाँ मेक श्योर कि ये ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला फंक्शन शुड भी सेम, मतलब वो सेम होगा तभी तो f of x लिखा है. ये अगर sin x है तो ये भी sin x रहेगा चाहिए. एक काम करेंगे, we will rewrite this function in this term and then we can apply this shortcut method. Yes, so minus 5 sin x plus 2 upon, I am rearranging this by 10 sin x plus 3. ठीक है, okay. Now let us try to apply. इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? det of a. What is a in this case? a is minus 5. What is b? If I compare, b is 2. इससे कंपेयर करते जाओ इसको, इससे इसको. b is 2, c is 10, d is 3. okay, times of f dash of x. What is f of x by the way? इस केस में a minus 5 है, b 2 है, c आपका है 10, d है 3. f of x कितना है बच्चा? क्या है f of x? sin x. तो इधर क्या लिखते हैं हम लोग? f dash of x. sin का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x डिवाइड बाय 10 sin x by plus 3 the whole square. आ गया आंसर. minus 15 minus 20. minus 15 minus 20 कितना होता है? minus 35. This is your final answer. If you don't believe me, expand करके देखो. अच्छा, ये स्क्वायर है बाय द वे, ये मिस्टेक हो गया मुझसे. This would be square. Yes, okay. 10 sin x plus 3 the whole square. कैसा ये मेथड समझा दिवेश? ये हाँ सर, ये समझा, ये समझा. चलो ठीक है. चलो एक सम खुद से करो जरा सब लोग. स्टार्ट सॉल्विंग दिस सम बाय योरसेल्फ. फाइंड डेरिवेटिव. ये पहला शॉर्टकट लिख लो आप लोग इसको. d by dx of, yes, 3 minus 5 tan x upon 12 tan x plus 3. Do it right now. Go for it, class. Copy this down. Okay guys,
guys completed? Yes. Yes, sir. Okay. So ये मैंने एक डेरिवेटिव का सम दिया था आपको, ठीक है. इसका जरा सोल्यूशन चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है. ओके. ओके गाइस, आंसर वुड बी, डिनोमिनेटर में तो डायरेक्टली स्क्वायर आ जाता है, 12 tan x प्लस 3 दी होल स्क्वायर. न्यूमरेटर में क्या है, डेट ऑफ, बोलो a क्या है इस केस में, a व्हाट इज a, -5, -5. b इज इक्वल टू 3, व्हाट इज c, 12, व्हाट इज d, 3. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -5 a b c और d, ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है. f डैश ऑफ x, tan का डेरिवेटिव क्या होगा, sec square x. sec square x, 5 3 is 15, -15 minus 36, 36 और 15 कितना होता है, 51. -51 sec square x. This is your answer, right? Yes. Yes, sir. हाँ सर. So you are done with this type. ये पहला शॉर्टकट था. चलो हम लोग नेक्स्ट वाले के लिए मूव करने वाले अभी. Let's start with next one. Next one is going to be very interesting. Okay. Next one is applicable basically for if y is some complicated function. Let's say अगर y कोई complicated function हो, कोई complex function हो, या y अगर function variable raised to variable हो, अगर u raised to v हो, तो क्या करते थे, इसको याद है, क्या करते थे आप, Log. you used to say, you used to solve by taking log on both side, right? ठीक है. But for this case I'm going to solve this part in some different method. Let me consider one example. y is equal to second method. Second method का नाम मैं थोड़ी देर में दूंगा, ठीक है. ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3d होल क्यूब, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, एंटायर थिंग डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 2 एंटायर थिंग रेज़ टू व्हाट, 2/3. गाइस लेट अस सॉल्व दिस मेथड, ठीक है. इस मेथड सर माइक बंद करने बोलो ना, आवाज आ रहा बहुत. ओके, हो गया. इस मेथड का नाम मैंने दिया हुआ है सीसॉ मेथड, ठीक है. व्हाट इज सीसॉ मेथड, देखो यहाँ पे, हाउ डू वी सॉल्व दिस. अच्छा, इन जनरल अगर मुझे ये सॉल्व करना होता अनुश्री, तो कैसे करते हैं हम लोग, अगर बोर्ड्स में मुझे सॉल्व करना होता तो, log a minus log b लेते, log लेके. हाँ बोलो अनुश्री, दोनों तरफ लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड. हाँ. ठीक है. अभी हम यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे. मैं वो भी जनरल मेथड भी आपको बताऊंगा, यहाँ पे जो नॉर्मल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड वो भी बताऊंगा, और शॉर्टकट मेथड. चलो ट्रेडिशनल मेथड करते हैं जस्ट फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन. ट्रेडिशनल मेथड के लिए हाउ डू यू सॉल्व दिस. हाँ, आप लॉग लेंगे दोनों तरफ, लॉग y इज इक्वल टू log a by b is log a root of 1 minus x square into 2x minus 3 the whole cube minus log b log x square plus 2 raised to 2/3. ठीक है. तो ये 1 minus x square raised to हाफ होगा ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, हाफ log x log 1 minus x square. ठीक है. log a into b क्या होता है बच्चे लोग, log a plus log b. ये उनको ही समझेगा जिसने सम्स किया हुआ है. log a plus b 3 log 2x minus 3 minus log x square plus 2/3 इधर आ जाएगा. ये log y इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 1/y dy by dx. ठीक है. 1/2 इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 minus x square upon 1 minus x square into minus 2x प्लस इसका डेरिवेटिव 3/2x minus 3 into derivative of 2x minus 3 is 2. इसका डेरिवेटिव minus 2/3 log, sorry 1 upon x square 2/3 1 by x square plus 2 into
2x. So final answer would be what? dy by dx is equal to y उधर गया, ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, क्या आएगा? माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय द वे, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे 3 2 जा 6, 6 अपॉन 2x माइनस 3. इधर पे क्या आएगा? 2 2 जा 4 माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2. किसी को कुछ डाउट है ये रेगुलर मेथड में? नो सर. ये सब लोग ने किया हुआ है, ठीक है. सेकंड एक्सरसाइज में हम लोग ने ऑलरेडी किया हुआ था. अब मैं सर इसे 3 भी है ना उधर, किधर पे 3 है? हाँ इधर -2 लास्ट में ना, हाँ 3 ये 3 भी है, हाँ सही हाँ. है, ठीक है. अब मैं सीसॉ मेथड अप्लाई करने वाला हूँ और ये पूरा का पूरा सम एक स्टेप में करने वाला हूँ, ठीक है. लेट अस गो फॉर इट क्लास. यहाँ पे देखिए हाउ डू वी डू दैट. वाई क्या करने का, आंसर जनरली कैसे लिखते हैं? हाँ, जैसे सीसॉ में क्या होता है, अगर ये प्लैंक है जो आपका प्लैंक, एक प्लैंक ऊपर जाता है, एक प्लैंक नीचे आता है, राइट? कुछ इस तरीके का होता है. यहाँ पे एक बच्चा बैठता है और यहाँ पे एक बच्चा बैठता है, बराबर. ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा. अगर ये नीचे गया तो ये ऊपर जाएगा, बराबर. सही है, नो एटलीस्ट आदित्य? Yes. हाँ. तो अभी जो ऊपर जाता है वो पॉजिटिव, जो नीचे जाता है वो नेगेटिव. मतलब हम न्यूमरेटर को जो है वो पॉजिटिव लिखेंगे और डिनोमिनेटर को जो है वो क्या करेंगे? नेगेटिव लिखेंगे. नेगेटिव. और कैसे लिखेंगे देखो यहाँ पे, कैसे लिखेंगे, कैसे सॉल्व कैसे करते हैं. dy by dx इज इक्वल टू y हमेशा लिखने का. dy by dx इज Hello? इक्वल टू y. हेलो, सर. हाँ बोलो. हाँ सर समझा. हाँ, dy by dx यहाँ पे जो ऊपर the thing which is present in numerator I'll write positive, the thing which is present in denominator I'll write as negative. y times of. अभी सुनो, इसका जो पावर है, पावर इंपॉर्टेंट है. जो पावर रहेगा वो पावर लिखने का. इसका पावर क्या? पहले वाले का पावर. पहले न्यूमरेटर को निपटाते हैं. लेट अस सॉल्व न्यूमरेटर. व्हाट इज पावर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर? हाफ. हाफ. तो राइट हाफ ओवर हियर. पावर के अंदर जो भी रहेगा उसको डिनोमिनेटर में लिखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है. और इसका डेरिवेटिव चेन रूल अप्लाई करेंगे ना. पावर के अंदर जो भी है उसको नीचे लिखो, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? -2x. -2x. ठीक है. -2x. अच्छा, ये अभी ये ऊपर ही है ना, द थिंग विच इज न्यूमरेटर में उसे X raised to पॉजिटिव n ना? लिखेंगे. प्लस ये क्या है? 3 है, X 3 ना. हाँ तो इधर लिखेंगे Yes. 3. जो भी पावर के अंदर है उसको डिनोमिनेटर में 2x 2x माइनस -3 डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 3 2. 2. ठीक है. दिस इज इन डिनोमिनेटर, राइट माइनस. मैंने बोला जो भी हाँ. नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में वी नीड टू राइट माइनस. व्हाट इज पावर? 2 by 2/3. 2 by 3. whatever is there inside power right in denominator. x square plus 2 2. ठीक है. what is derivative of 2x. x square plus 2? 2x. 2x. this is your final answer. check your answer students. वही. ये 2 वो मैंने कैंसिल नहीं किया है. 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा. ये -4x/3 कैसा मेथड है ये? सर बहुत अच्छा तो मेथड ये है. आप लोग, हाँ, दिस यू कैन, बट यू कैन नॉट अप्लाई इन बोर्ड्स. You just for Yes, yes. verification purpose you can do this, and definitely this method you can apply in any competitive exam. NDA दो या आपका JEE मेंस पेपर 1, JEE मेंस पेपर 2, नाटा, कुछ भी करो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो. तो मैं एक काम करता हूँ, I'll give you one sum to for you people to solve. ठीक है. पहले ये सॉल्व, बहुत सारे सम सॉल्व करेंगे. इनफैक्ट I would recommend, मैं आपके टेक्स्ट बुक से ही लेता हूँ. I would recommend to solve entire textbook by this method. अभी ये जो मैं आपको दूंगा, ठीक है, पहले ये लिख तो लो सही से. राइट दिस मेथड स्टूडेंट्स. तो क्या लिखे इसमें, मतलब क्या नोट बिट लिखने कुछ का? है? सम्स लिख ले. ये समझ गया ना तुझे? हाँ सर. समझना इंपॉर्टेंट है कि हाँ ये पावर लिखते हैं. सर ने बोला ये टर्म, दिस टर्म वी नीड टू राइट इन डिनोमिनेटर देन डेरिवेटिव ऑफ इट. दैट्स इट, नथिंग सर एल्स. पावर ऊपर आएगा ना? हाँ पावर, वही पावर लिख देंगे यहाँ पे. जो भी पावर रहेगा दैट नहीं. विल राइट. ऊपर आएगा ना पावर, मतलब? न्यूमरेटर में ही आएगा. हाफ है तो हाफ लिखा, ओके 3 है तो 3 लिखा. ओके सर.
सर उधर -2/3 कैसे है? मैंने बोला ना, जो डिनोमिनेटर में होता है उसके आगे माइनस लिखने का। इसका पावर 2/3 था, इसलिए 2/3 लिखा। चलो देयर आर मेनी सम। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कहां से कहां तक आप लोग कर सकते हो। आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, एंटायर क्वेश्चन नंबर 1 यू कैन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप पूरा ये शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सर कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज दिखा है, देखो देखो लिखा है सब। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। आई डू वन थिंग, आई टेक वन क्वेश्चन आउट ऑफ इट, उसमें से। ठीक है, चलो करें। सर एक डाउट था, अगर d2y/dx ढूंढना तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब मेथड अप्लाई नहीं है, तब अलग करना पड़ेगा। वो तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, फिलहाल वी आर डूइंग लीनियर डेरिवेटिव dy/dx। तब ये तो निकालना ही पड़ेगा ना बेटा, इसके बाद फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब ऐसा नहीं कर सकते। ओके चलो, कैन आई स्टार्ट विद न्यू पेज? Yes, sir. यस सर। एवरीवन डन विद राइटिंग राइट? ये रेड वाला लिखने का जरूरत नहीं है, दिस इज ए रेगुलर मेथड, डोंट वेस्ट योर टाइम। यस यस। एक ही चीज 10 बार लिख करके। ठीक है, नाउ yes guys, next question is like this, which you people are going to solve by yourself. X square plus 2x plus 2 raised to 3/2 from your book itself. Yeah, root of just a second, root of x plus 3 entire thing ka cube, then cos x. okay we can solve this part. चलो शुरू करते हैं। cos x रेशो 5 लिख देता हूं ऐसे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। बताओ क्या आएगा? y डैश, मैंने क्या बोला? द थिंग विच इज प्रेजेंट इन न्यूमरेटर इज पॉजिटिव, तो दिस वुड बी y टाइम्स ऑफ y। बाय डिफॉल्ट लिखना है इसका पावर। व्हाट इज पावर ऑफ दिस? 3/2। फंक्शन को you need to write in denominator x square plus 2x plus 2 into derivative of function. What is derivative of x square plus 2x plus 2? 2x plus 2। 2x plus 2। 2। ठीक है, then minus this is in Minus। denominator. what is अच्छा power? this is 3 और ये हाफ हो गया, तो पावर 3। कितना होगा? 3/2 होगा। 3/2। तो over Yes। here we'll write 3/2 and what is function? x plus 3. Plus Derivative 3। of x plus 3 is what? 1 1. 1 1। Okay, again this is in denominator, I'll write minus. what is power? 5 5. 5 cos x denominator में, derivative of cos x minus 7। so guys this is the answer within one step. everyone understood? श्रद्धा समझ में आ रहा है? सर बहुत इजी है, समझ रहे हैं। चलो ठीक है, एक सम लास्ट करते हैं, उसके बाद वी कैन स्विच फॉर नेक्स्ट वन। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप लोग खुद से कर देना इसके बाद। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पेज, आई एम गोइंग फॉर नेक्स्ट पेज। y is equal to root of sin inverse x square minus 1 entire thing divided by cos x cube. चलो लेट्स डू इट गाइस। ठीक है, अच्छा जस्ट अ सेकेंड, कैसे करेंगे? पहले तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले रूट विथ सब अलग अलग कर लो। साइन इनवर्स यस x स्क्वायर माइनस 1 एंटायर थिंग रेज टू व्हाट? हाफ डिवाइड बाय cos x cube entire thing raised to half. चलो what would be our answer? dy by dx y times of, tell me, न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे पहले? 1/2 1/2 the infinite function sin inverse x square minus 1, चेन रूल अप्लाई करो, into derivative of sin inverse function 1 upon root of 1 minus
x square minus 1 the whole square. फंक्शन का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन 2x 2x माइनस, अभी क्या लिखेंगे 1/3 cos x क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos माइनस साइन इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब. 3x स्क्वायर. So finally dy by dx is equal to, this is the final answer guys. So this 2 and तो 2 gets 1/3 cancelled. कितना आएगा? पावर क्या है बेटा इधर? cos x. Sorry 1/2 I हाँ made a वही बोल रहा mistake. था. 2/2 था ना सर. Okay. हाँ 1/2. 3/2 आएगा. It should be 1/2 basically. वहाँ पे 3/2 आएगा. ये 2 1/2. और ये 2. Okay. So now the final answer would be yes, x by यहाँ पे sin inverse x square minus 1. ये इसको ऐसे रहने दो, ठीक है. ये एक्चुअली अगर इसको एक्सपांड भी करोगे आपका 1 और 1 जाएगा, आपको मिलेगा 2x minus x square. चेक कर लो ना, चेक कर लेना, ठीक है. This would be minus or minus plus 3/2 x square. Sin by cos is what? Tan x square, tan x cube basically. Anyone has doubt till here? Simple है कि नहीं? Done? हाँ सर. चलो एक last sum of this type, then we'll switch for next one. Okay. Do it by yourself guys. Y is equal to root of x cube minus 1, 3x minus 7 raised to 7/3, entire thing and divided by x raised to 5 minus 3 raised to 4/3. Do it. Start solving it. Hopefully everyone is solving this sum, right? हो गया. Done, sir. Okay guys, you got this answer. Y dash matlab dy by dx itself would be y times of, yes, 1/2 x cube minus 1. I'm directly writing answer 3x square, ठीक है, plus 7/3 3x minus 7 into derivative of 3x minus 7 is 3 itself, minus 4/3 x raised to 5 minus 3, ठीक है, into derivative of x raised to 5 minus 3, what is it? 5x raised to 4. 5 What's the answer? Yes sir. सर 3 कैंसिल हो Yes, जाएगा. sir. हाँ वो तो ठीक है, 3 cancel. कैलकुलेशन वाला पार्ट में नहीं करा, वो सिंपल है, वो कोई भी कर हाँ सर वो सब आ गया. हाँ हाँ सर बराबर. तो नाउ फर्स्ट ये हो गया अपना सीसो मेथड खत्म हो गया. अभी हम थर्ड मेथड के लिए हम जा रहे हैं, ठीक है. थर्ड मेथड इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू पीपल.
this method, when do we apply this method generally? This method is applicable for चलो बाबा के द्वारा तेरा वो दक्षिण से गाड़ी बारिश होगी। अरे 10 जून को बारिश नहीं होगी। हाँ ठीक है, वो करो, म्यूट करो अपने आप को श्रिया। हाँ ओके, बारिश हुई नहीं हुई वो बता रहे, ठीक है। अगर हमारे पास दिस मेथड इज एप्लीकेबल इफ वी हैव लाइक फंक्शन रेज टू फंक्शन, इफ वी हैव दिस टाइप ऑफ टर्म f of x raised to g of x and derivative of this type of function, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव sin x raised to x, ठीक है। अगर दो फंक्शन रेज टू फंक्शन या वेरिएबल रेज टू वेरिएबल रहेगा, हाउ डू वी सॉल्व दिस मेथड, किस तरीके से लिखना है समझो। अगर ये इंस्टेड ऑफ जस्ट अ सेकंड, आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस, हाँ लिखेंगे कैसे हम लोग, लेट्स से अगर ये y is m raised to n, similar formula would be applicable over here. Y dash is equal to what, y dash is equal to यहाँ पे y times of ब्रैकेट में, y times of ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे n by m, ठीक है। क्या लिखेंगे बच्चे लोग, n by m into डेरिवेटिव ऑफ m, ओके, m by n into डेरिवेटिव ऑफ m प्लस n का डेरिवेटिव log m, इसका डायरेक्ट आंसर होगा। मैं आपको एक सम करके बताता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जैसे ये देखो, ये y इक्वल टू साइन एक्स रेज टू एक्स है, हाउ डू यू सॉल्व इट गाइस, log y बोलो, y into x log sin x, ऐसे करते हैं ना, log y का डेरिवेटिव, पहले नॉर्मल मेथड में सिखा रहा हूँ 1 by y dy by dx, 1 by y dy by dx is equal to yes x log u into v, 1 by sin x into derivative of sin x which is cos x, plus log sin x into derivative of x which is 1. So what would 1. be dy by dx equal to y x cos x y cos sin x, cot x cot, plus log sin x। तो वही चीज मैंने इधर बताया आपको, क्या बताया देखो, if y is m raised to n, आंसर क्या आएगा, y dash would be y मतलब m raised to n, ब्रैकेट में क्या आएगा, ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, न्यूमरेटर अपॉन दिस, सॉरी पावर अपॉन बेस n by m इंटू डेरिवेटिव ऑफ m प्लस नीचे का log इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। जैसे अगर मुझे इस केस में ये मेथड अप्लाई करना होता, कैसे करते थे, y dash is equal to, tell me answer according to this, x upon sin x, यहाँ पे sin x raised to x, y लिखेगा ना, y टाइम्स ऑफ, हाँ इधर पे this is n, x by sin x, x by sin x x, upon sin x into derivative of sin x cos x cos cos x x plus plus log 1 log cos x, sorry log sin x into derivative of x which is 1. That's it, you got the answer. Yes sir. समझा। So if you have function f of x raised to g of x, तो हम डेरिवेटिव का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, y dash is equal to y ब्रैकेट में n की जगह पे क्या लिखना, g of x लिखना, g of x, n की जगह पे g of x and instead of m f of x into डेरिवेटिव ऑफ, चलो यही टर्म में याद रखो, ये जरूरत नहीं है, if you remember this also it's fine, we can apply this on top. तो मेथड का नाम क्या है, नाम नहीं है, ऐसे ही मेथड, नेमलेस मेथड है, संदीप सर्च मेथड, ये सब ऑब्जर्वेशन है, ये सब क्या है, आप देखो ना, यही ऑब्जर्वेशन, आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे आपको खुद समझ जाएगा कि कैसे ये मेथड आया हुआ है, ठीक है, डू इट। So now we would be taking few sums related to this just to make this part bit concrete. Regular method लिखने की जरूरत नहीं है, the terms which you used to apply in your boards, already you people. On basis of this, which all question you people can solve, entire exercise
1.3 का क्वेश्चन नंबर 2, उसमें से एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ठीक है। चलो, डन विद राइटिंग पार्ट ऑफ दिस। ओके ओके, वी आर मूविंग फॉर नेक्स्ट वन देन। नेक्स्ट वन मतलब सम्स रिलेटेड टू इट। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जस्ट उसको जरा अच्छे से करेंगे और आपको फिर ये समझेगा कि ये पहले हम करते थे कितना लेंदी होता था। नाउ वी कैन डू इट विद इन वन स्टेप। क्वेश्चन इज समवॉट लाइक दिस, sin x रेज टू tan x। वी हैव 6 मिनट, ये 6 मिनट के अंदर खत्म करना है फटाफट। cos x रेज टू cot x। चलो स्टार्ट सॉल्विंग दिस गाइस। पहले एक काम कर, इसको अलग से अप्लाई कर, इसको अलग से अप्लाई कर। इसको हम लोग यू लेते हैं ना। इसका आंसर बता डायरेक्टली। मैं एक करता हूं, sin x tan x रेज टू tan x, ब्रैकेट में tan x tan upon x sin x अपॉन sin x इंटू into डेरिवेटिव cos ऑफ x sin x विच इज cos cos x x प्लस plus 1 प्लस log sin 1 x। into log sin x 1 क्यों? 1 उसमें x था, हाँ, इसके लिए 1 sec हो गया square डेरिवेटिव। sec square x sec square x इधर पे क्या आएगा? log, नीचे वाले का log log sin log x into sin sec x square x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sec square x। ये हो गया। अब इसको भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं। चलो बताओ फटाफट इसका डेरिवेटिव। tan x cot x यहाँ पे cos x रेज टू cot x, ब्रैकेट में cot x अपॉन cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x minus sin प्लस log cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cot। minus cos x square x दैट्स इट, डन। ये tan x इंटू cos x वुड बी cos बाई sin वुड बी cot। sin x रेज टू tan x, ब्रैकेट में आएगा 1, tan x इंटू cot x इज 1 प्लस sec square x log sin x, ठीक है। सिमिलरली प्लस cos x रेज टू cot x, दिस sin by cos tan, cot into tan 1 but minus इसलिए -1 minus cosec square x log cos x. This is your final answer guys. This method makes terms bit simple and you can solve within few steps. मतलब normal method से ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, but क्या अपना competitive exam में we have very less time available with us, तो वहां पे ये अप्लाई करना बहुत सिंपल है। तो both the method were for variable raised to variable and for complicated function। हो जाएगा ना? हाँ सर चलो अब हम आगे बढ़े। एक लास्ट मेथड करते हैं हम लोग, इम्प्लिसिट फंक्शन। फिर मैं अपना वो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल वाला क्वेश्चन कराता हूँ। अच्छा यहाँ पे ये न्यू व्हेन आई स्टार्ट विद न्यू मीटिंग ओवर देयर आई विल डिस्कस इम्प्लिसिट फंक्शन। मीनवाइल यू कॉपी दिस एंड आई हैव गिवन यू होमवर्क आल्सो। होमवर्क मतलब अभी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये अपना सीसो मेथड से और ये अभी वाला मेथड से। ओके yes sir now I am going to explain one method which is very important and which why it is important I'll let you know, क्योंकि उसमें प्रूफ होता है। जनरली हम सबको उसमें प्रॉब्लम आ रहा था प्रूव करने के लिए, बट अभी क्योंकि वो मेथड मालूम पड़ जाएगा सॉल्विंग सम्स वुड बी कंपैरेटिवली वे सिंपलर। ओके चलो we'll stop this lecture over here। अभी फटाफट ज्वाइन करो। ओके गाइस, next method is applicable for implicit function। ठीक है ना? implicit function याद है? implicit function में क्या करते थे? we used to get equation of x and y, x square plus 2xy plus y square equal to 0, somewhat like this, or this function is nothing but called as what? implicit function। ठीक है, जैसे आपको मिल गया x क्यूब minus 3x y square plus 3y square plus 5y equal to 0, even this is nothing but called as implicit function। ये implicit function is a function
where you get a combination of equation in terms of x and y both, जहाँ पे x और y दोनों की इक्वेशन मिलती है, ठीक है। अभी इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए हम डिफरेंशिएशन कैसे करते थे? अच्छा, हमारे टेक्स्ट बुक में दो मेथड था, ठीक है। एम आई ऑडिबल टू यू पीपल, स्टूडेंट्स? Yes, Yes, sir. sir. हमारे टेक्स्ट बुक में दो टाइप के फंक्शन है जहाँ पे प्रूफ वाले क्वेश्चंस आते हैं। पहला वाला टाइप का क्वेश्चन था एक इम्प्लिसिट फंक्शन, सेकंड वाज पैरामीट्रिक और हाई ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डेफिनेटली ये सब के प्रूफ वाले क्वेश्चंस हमको पूछे जाते थे, प्रूव दिस प्रूव दैट, वो सब पूरा। तो अभी हम लोग इम्प्लिसिट का एक शॉर्टकट अगर सीख जाए ना तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, इफ यू हैव दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, इसका डायरेक्ट आंसर आपने कैसे लिखना है, ठीक है। अच्छा, व्हाइल डिफरेंशिएटिंग थोड़ा आराम से करिए, ठीक है। ये थोड़ा एक इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर में जब जाते हैं ना, there are two type of differentiation which we learn. Successive differentiation, जो कि आज लेक्चर के स्टार्टिंग में सिखाया था, कुछ लोगों को नहीं समझा, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। और सेकंड इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। समवॉट पार्शियल डिफरेंशिएशन हम यहाँ पे यूज करेंगे शायद, तो ध्यान देना, दिस इज फॉर वेरी न्यू टू यू पीपल। न्यू इन द सेंस थोड़ा संभाल के करना, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। दिस हाउ यू राइट y डैश, मतलब डायरेक्टली यू कैन राइट dy by dx इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे हम लिखेंगे f डैश ऑफ x, यहाँ पे लिखेंगे f डैश ऑफ y। अब ये f डैश ऑफ x क्या है और f डैश ऑफ y क्या है? f डैश ऑफ x जब मैं बोलता हूँ ना, इसका मतलब है कीपिंग y एज कांस्टेंट। व्हेन आई से f डैश ऑफ x, कीपिंग y एज कांस्टेंट। और जब मैं कहता हूँ f डैश ऑफ y, क्या करेंगे? कीपिंग x एज कांस्टेंट, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन लेता हूं जो आप लोगों ने किया है, जैसे ये इस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलो डिफरेंशिएट करें dy by dx। ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, माइनस पहले बाहर रखो। ऊपर मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स? गाइस, आदित्य क्या बोला ऊपर मैंने? F dash of x. कीपिंग y एज कांस्टेंट, मतलब ये फंक्शन की डिफरेंशिएशन करना है कीपिंग y एज कांस्टेंट। अच्छा, अगर समझो ये फंक्शन रीअरेंज नहीं है, if this is not rearranged, you have to rearrange, that is all the variable you have to bring towards left hand side and right hand side and equate it with zero। right hand side में बस zero होना चाहिए, तभी ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी we are going to differentiate this function keeping y as constant। चलो x क्यूब का डेरिवेटिव बताओ बच्चे लोग। 3x स्क्वायर, 3x ठीक square. है। इधर पे कांस्टेंट कौन है? 3 अकेला कांस्टेंट नहीं है, 3y स्क्वायर कांस्टेंट है। कौन है कांस्टेंट? Y. 3y 3y square. square. क्योंकि मैंने बोला है, हमने बात किया है, दिस वी हैव कंफर्म दैट वी आर गोइंग टू कंसीडर y एज कांस्टेंट माइनस 3y स्क्वायर विल गो आउटसाइड। x का डेरिवेटिव इज व्हाट? 1. ठीक है। व्हाट इज y स्क्वायर गाइस? y इज कांस्टेंट, 3y स्क्वायर वुड बी कांस्टेंट, Zero. का डेरिवेटिव 0, 5y का डेरिवेटिव 0, both the term are constant। now in denominator f dash of y keeping x as constant। now for me x would be constant। what is x cube का डेरिवेटिव? 0. 0. 0। 0. this 3, Minus please 3x. keep yourself silent, muted। okay, in this case what can you say? yes, 3x will go outside, 3x बाहर गया, y square का डेरिवेटिव इज व्हाट? 2y. 2y. 2y, ठीक है। 3y स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2y, कितना आएगा? 6y। 5y का डेरिवेटिव इज 5। so this is your final answer। take this minus inside, 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6y, 3 2 6 माइनस 6xy प्लस 5। you people understood? Yes, sir. so this is called as implicit function। make sure that you people write this part। we are going to solve some more sums related to it। yes, तो इतना ही आंसर है। हाँ ये आंसर है, इतना ही है। रुको मैं कुछ सम्स कराऊंगा जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है बाय दिस मेथड, देन यू मे फाइंड कि ये मेथड कितना अच्छा और इंपॉर्टेंट है।
ओके, तो नया क्वेश्चन ले हम. कैन वी स्टार्ट विद न्यू क्वेश्चन? Yes, sir. ओके guys, just a second, just a second. यस गाइस, चलो शुरू करते हैं हम लोग. हेलो. Sir. हाँ, तो वी हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर. ये क्वेश्चन जो हमने किया हुआ था पहले भी, x रेज टू p y रेज टू q इज इक्वल टू x प्लस y रेज टू p प्लस q. अभी ये क्वेश्चन में कैसे किया था हमने कि इसका मैंने डायरेक्टली आपको बोला था याद रखने के लिए. व्हाट इज y1 इक्वल टू, इसका याद है y1 क्या था? y by x. और इसका y2 मैंने बोला था 0. 0. राइट. 0. हाँ, अभी हम लोग इस मेथड से करेंगे. इसको कैसे अप्लाई करते हैं देखो. पहले आप एक काम करिए, क्योंकि ये लीनियर में नहीं है ना, पहले लॉग ले लो दोनों तरफ. ठीक है, कैसे लिखेंगे? लॉग p log x प्लस q log y इज इक्वल टू p प्लस q log x प्लस y. ओके, समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पे विल ब्रिंग टुवर्ड्स दिस साइड p log x प्लस q log y माइनस p प्लस q log x प्लस y इज इक्वल टू 0. ठीक है, अभी नाउ वी कैन डिफरेंशिएट. चलो शुरू करते हैं डेरिवेटिव लेना. y डैश, व्हाट वाज द मेथड? टेल मी, हाउ डू राइट इट? Keeping y as constant. माइनस कीपिंग y एज कांस्टेंट. इसका डेरिवेटिव हो जाएगा p log x का डेरिवेटिव इज 1 by x प्लस by x. इसका डेरिवेटिव इज 0 माइनस p प्लस q. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log 1 प्लस x प्लस y? 1 by x plus y into derivative of x plus y. What is derivative of x? 1. y का डेरिवेटिव 0. 0. 0. हाँ, y का डेरिवेटिव is 0. So I am not writing this part. अच्छा, similarly in denominator. Now in denominator keeping what as constant? X. x. तो यहाँ पे 0 plus q log y का डेरिवेटिव 1 by y minus p plus q. Derivative of log x plus y 1 by x plus y. x का derivative itself would be 0 plus 1. Okay, let us solve this. ये जो बचा है पहले उसको लिख लेते हैं. यहाँ पे p by q minus p plus q by x plus y. x plus y. सर वो p by x है. हाँ, p by x है. हाँ, p by, अच्छा, oh sorry, it's p by x. It's p by x. Similarly in denominator q by y minus p plus q by x plus y. Now take LCM of numerator as well as denominator. ठीक है, now cross multiply numerator में क्या आएगा? px plus py py minus px minus qx. qy. Right, entire thing divided by x into x plus y. यहाँ पे qx plus qy minus py minus qy. Entire thing divided by y q plus y. X plus y gets cancelled. Px gets cancelled. Py gets cancelled. Py minus qx और ये py qx minus py ये cancel. क्या बचेगा आपके पास? सॉरी, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया है. माइनस 1 से. ठीक है,
ये अगर मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तब ये कैंसिल होगा. इफ आई टेक माइनस कॉमन देन दिस गेट्स कैंसिल, एवरीथिंग कैंसिल. ये माइनस कॉमन लेने के बाद व्हाट इज योर लेफ्ट ओवर टर्म? माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, y by x. समझा? यही सब हमने जब रेगुलर मेथड से किया था, बहुत लेंथी हुआ था, याद है? Yes. So copy this down. Yes, I'm giving you 5 minutes. Copy करने के बाद I am giving you one sum, exactly one sum to solve it right now. You people solve it by yourself. X cube plus y cube plus 2xy plus cos y minus 20 is equal to 0. Do it. इसके बाद ये करना, ठीक है? Yes guys, you're done. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछता है लोग. अच्छा, इसका डेरिवेटिव अगर दूसरी बार करना है, दूसरी बार डेरिवेटिव सिंपल, एक्स स्क्वायर ऊपर क्या लिखेंगे, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u Y1. माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v. बट y1 क्या है, y बाई x है, हाँ. तो कैंसिल होकर के सब क्या हो जाता है, 0. x माइनस एक्स कैंसिल होता है. ओके गाइस, इट्स ऑलरेडी 1 ना. तो ये एक फाइनल आंसर, इसको कंक्लूड कर लेते हैं. वो मेरा वो डिफिकल्ट वाला जो बताने का था वो रह गया यार. चलो कोई नहीं, विल सॉल्व नेक्स्ट टाइम देन. वेरिएबल रेज टू वेरिएबल, बहुत सारे सम है. अभी आप ये सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करके जितने क्वेश्चंस है और सॉल्व करिए जो मैंने एमसीक्यूज भेजा हुआ है उसमें, ठीक है? Yes, चलो sir. इसका डेरिवेटिव बताओ. y डैश माइनस Minus 2x square. 3x स्क्वायर 3x X square प्लस 0 plus 0 प्लस plus 2 2y कांस्टेंट 2y. विल गो आउटसाइड, x का डेरिवेटिव इज 1, cos y का 0, दिस इज 0. ओके. 0 minus 0. हाँ, डिनोमिनेटर में क्या आएगा बताइए? 0. 0 plus plus 3y square 3y 3y square square. plus Plus 2x is 2x. constant will go outside, y का डेरिवेटिव is 1 minus sin y. Minus sin y. minus sin y. That's it. That's the answer. हो गया. 3x square plus 2y entire thing divided by
3y 3y स्क्वायर square प्लस plus 2x 2x माइनस माइनस minus sin sin y. y। ठीक है। तो अभी सर इसके आगे कुछ कर भी नहीं सकते ना? हाँ, इसके आगे क्या कर सकता है? इसके आगे अगर समझ वैल्यू दिया है x and y, if they are providing me value of it x and y, we can just substitute the value, nothing else. Okay. हाँ ओके So सर। all the questions over here, which all question you can solve? Exercise 1.3 1.3 का 1 and 2 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 2 तो हो ही गया ना बेटा। अभी जो मैंने सीखा है ये जो इसके बेसिस पे 3 4 क्वेश्चन नंबर 4 में तो एवरीवेयर यू हैव टू प्रूव दिस 3 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ क्वेश्चन है जो मुझे सिखाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में यू कैन सॉल्व टिल 5th वाला। ओके yes sir। still if at all you have any doubt, let me know in my next class. So next class is going to be tomorrow. It's of holiday, no, as per our this. Yes. Yes. Next class is going to be on sir. Saturday. Saturday को we'll wind it up. Derivative का और difficult से questions करेंगे, थोड़ा लंबा सेशन करेंगे सैटरडे तक। सैटरडे एंड इवन संडे, संडे तक खत्म। डेरिवेटिव का संडे के बाद बात नहीं करेंगे। I'll start with new topic. लॉजिक का न्यूमेरिकल एमसीक्यूज और नया टॉपिक। ठीक है। मैट्रिसेस Yes, sir. मैट्रिसेस और मैं कॉलेज में मैट्रिसेस चालू किया। नहीं, मैं देखा प्रोबेबिलिटी चालू मैट्रिसेस। किया है, प्रोबेबिलिटी चालू किया है। वो सिंपल ही करेंगे सब लोग। मैं एलपीपी शुरू करने वाला, एकदम सिंपल। इतना पहले कर लेते हैं। जो गरीब बच्चे Yes, हैं, sir. गरीब बच्चे मतलब जिनको पास होने का है, ठीक है, कैसे भी पास होना है मैथ्स में, एटलीस्ट फॉर देम 5-6 टॉपिक कर लेते हैं कि 40-45 मार्क्स मिल जाए। फिर आगे हम लोग डिफिकल्ट टॉपिक करेंगे एटलीस्ट। एंड फॉर पीपल हु वांट टू स्कोर, दे कैन कंफर्म देयर एटलीस्ट 45 to 50 मार्क्स। So for that I would be solving all the simple chapter first. छोटे टॉपिक्स है, सिंपल और फटाफट कर देंगे। ठीक है, चलो गाइस, एंजॉय योर डे, स्टडी हार्ड, पढ़ाई करो, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट प्ले पबजी, डोंट वॉच वेब सीरीज, इंस्टेड थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए।